ये इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ। हर युग का ये भारत दर्शन, हर युग का ये भारत दर्शन, हर युग का ये भारत ये दर्शन। इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ। Welcome to Indraprasth, the capital of the world's oldest, largest, and the most vibrant democracy, where eminent scholars and experts talk on the various aspects that have made this country a Mahan Bharat. Indraprasth Talks, an initiative of the Draupadi Dream Trust, Project Atmanirbhar of Ranjit Chaturvedi, Team Chrysalis Media, led by Aryan Aditya. I would request everybody to limit the questions to Yamuna because we want to make this a Yamuna specific question answer session and pertaining to the issues that we face, the Yamuna, my Yamuna faces today and how we should take it forward and anything about Yamuna that the speaker has, honorable speaker has sort of enumerated, which anybody would like to talk about, question him about. Pranam, everyone. My only thing is, thank you. Firstly, a very comprehensive, very informative backgrounder to the whole civilizational structure and the place of the Yamuna in our lives. Thank you. Because for me, the Ganga and the Yamuna are really sisters. But the abode of the Ganga is heaven. For us who are on the earth is the Yamuna. And most of us Indians, you know, we are a mixture of Shaivites, Vaishnavism and Shaktas, but for Vaishnavas, their lifeblood is the Yamuna. Sure. And as you have said, we are murdered. Yes, It is time for us to book the murderers. Let us get together and start filing FIRs against individuals who head the Delhi Jal Board or the municipalities on the route, on the Yamuna basin, because till we start targeting specific people and multiple FIRs are launched, these people will abrogate their responsibilities. Just remember, I say multiple FIRs, see what's happened to a unit cabinet minister, I think Rane is his name, for some minor issue, he made a statement and he was arrested. If we file multiple, the Brijwasis and the others, and as I said, where the Yamuna runs through only 2% of the land and it will provide 70% of the pollution into the river and kills the river, I think it is time to take concrete action against specific individuals. Let them run to Etawah to answer the court there. Let them run to Agra, Mathura, Vrindavan, anywhere along the line. Then only will sanity prevail. The only thing is the residents of Delhi, which includes you and me and a lot of other people, I'm only a partial resident there, and the ministers and the judges may not be very sympathetic to our cause, but till it hits them home, I'm sorry, the thing will continue as they are. That's all that I have to say. But thank you very much, Chaturvedi ji. It was a very informative and enlightening talk. Thank you so much, sir. Thank you, Neeraj, for getting this together. Thank you. Thank you. Any specific question you would like to raise? Of course, you have given very No, it's a very wonderful- important suggestion that he's made. He has been telling me this for last 3 months, but somehow I'm so happy that you could join us so early in the morning and your wife has helped you to get logged. You told me you can't do it yourself. So thank you so much to her also. Any other? Yes, now the question answer. I would like to mention that we have a very good friend of mine. And his name is Mr. Anil Khaitan. Okay. He is a very prominent industrialist and he has been the president of the PhD Chamber of Commerce and Industry. And I'm so happy that he has joined and he has brought in the picture of Kailash Mansarovar. Thank you so much, Anilji. Most welcome, Anilji. And if Anilji, would you like to say something? Yeah, we would like to hear a few comments from you or any question that you may want to have, please. Ranjit,
Yeah. I think indeed I also agree with the previous two. The two distinguished speakers. I mean, not speakers, but they asked you, or they, gave you compliments. I agree with that. You've done a nice, detailed description. At least to me, I've got a Aryan, lot of please see knowledge. somebody's mic is, please put And it off, you Aryan. went back so far in history, much beyond Mahabharata. So indeed, I will be sitting with you to get some more knowledge. Now that's about the knowledge part. Now what Chandrakant ji has said, I think that is what is important now. Like Prime Minister Modi has taken the Ganga mission. Also, the Yamuna mission has to be taken. I Please, think One is at somebody, the government please level. somebody put off their mic, somebody which is getting disturbed. Amit Goon, can you? I think Please, somebody please. Sorry, Yeah. I'm sorry, Anilji, I'm sorry. Sorry, so sorry. Yeah. No, I was saying what Chandrakant ji said is absolutely correct. क्योंकि इस देश में अब मैंने देख लिया कि every day I see that there's some judgment coming from the Supreme Court which ultimately runs this country. So when the politicians or the bureaucrats and even we the people, if we are not conscious towards nature, towards something which is feeding us, feeding our children, our families. It's been the nourisher of our existence. Absolutely, because water is the basis. तो आज अगर मतलब है गंगा जी पे सरकार इतना काम कर रही है, तो आज यमुना जी पे क्या काम हो रहा है रंजीत, ये जरा अगर तुम हम लोग के साथ शेयर करो कि whether government does it have any plan for the river Yamuna, like Prime Minister Modi has a huge plan for Ganga ji, does he have a plan for Yamuna ji? If you can please throw some light on that. No, there is nothing. In fact, Anilji, can I just intervene? Sorry on this, but if I remember correctly, I moved to Delhi in 1995. 1996, I sort of been talking to people and I said, why don't we do something for revival of Yamuna? Why I said this, because when I stayed in Bengal, there is this Damodar river and it has been very beautifully sort of beautified with a place called Limaya Park, and we would go in the evening. So I wanted to have that concept here. Believe you me, within a few months, I read in the papers that a lot of money has been given for a Yamuna development plan. And I'm talking about 1996. And I don't want to name the politician here. He was the head of it. And from then, where the money has gone, what has happened is for everybody to see. I would like to just add here, Mr. Khaitan, what you said. See, there is a Namami Gange plan. And under that Namami Gange plan, they look at the entire country. But they've given it a title of Namami Gange because Ganga being apparently the most important river of the country, the holiest. But contrary to that, ironically, when we sing our national anthem, we say Yamuna Ganga, not Ganga Yamuna. So Yamuna comes first. Even in the Rig Veda, the Nadi Sutra, the Yamuna comes first. Secondly, there is Yamuna is a part of the Namami Gange, but just as a part because Yamuna is considered a sister river of Ganga, but nothing specific visible. By the way, Ganga is not mentioned in the Veda, I think. It's just mentioned Ganga once. is mentioned, it starts, the Nadi Sutra starts with Ganga, Yamuna, etc., etc. But in the Rig Veda, yes, but in Rig Veda, even Yamuna in the is Rig mentioned Veda, twice. Ganga Avtaran happened during Sagar's time, which is an ancestor of Ram. So there is a proper document. As I said, we'll discuss the history part later. Okay, but coming back to the actually, that Ranjit, just to conclude what you asked me, what I would strongly suggest is that you have the contacts in the government, the ministry, you know whom to meet. And since you know the ground root reality, I think you should take this mission forward. And one person you should meet definitely is Mr. Nitin Gadkari. He has tremendous ideas and he was in charge also as a minister of the Ganga program, and he'll give a lot of ideas to you.
or a lot of status as to what the government is thinking for the Yamuna River. Hmm. Because I somehow can't swallow it that the government has thought nothing about the Yamuna River and they are only thinking about the Ganga. So एक बार आप जरा check कर लेना इसको. हाँ? So You're right, yes, sir. they have combined it with the Namami Gange project, as I said. So, but Oh, I very see. little attention is being given because I am in constant touch with DG, and I have done a big project with them. But the point is, it's just a minimal part of it. It's not a serious part because, as we said, there's no activism on it. Right. Okay. Thank you. Manjula ji, आपका speaker, please. Can she be unmuted? Aryan, please. Aryan, Okay. आप शुरू करो. and Sure, she's questions unmuted. are- Manjula ji is from the Ministry of Home Affairs. She works very closely Yeah. with the Hindi Yeah. Sahitya department. Right. So please. And she's been hearing the whole thing. And she has actually Ma Ganga behind her, I think. Oh, Or is very it Saraswati? Or is it Ma Yamuna? ये महालक्ष्मी है basically. अच्छा. यमुना ही है मतलब. ठीक है. आप सभी को जय श्री कृष्ण. पूरी भारत सरकार की एक संसदीय रक्षा समिति है जो 1976 में भारत सरकार ने बनाई थी, जिसमें 30 सांसद हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा, जिसके अध्यक्ष अमित शाह जी हैं. और इस समिति का काम है कि भारत सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उनमें हिंदी के प्रयोग में जो प्रगति हुई उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं और फिर उसका विश्लेषण करके उस पर रिपोर्ट को हम राष्ट्रपति जी को देते हैं आगे की कार्रवाई की. तो अभी उसका 10वां खंड हम अभी जा रहे हैं, 9 राष्ट्रपति जी के पास आ रहे हैं. Can you speak slowly? आप जल्दी बोल रही हैं तो आपकी वॉइस पता है ऐसे कर रही है. मतलब अगर आप स्लोली बोलें प्लीज. मैं जीत आपको बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि आपने हमें टाइम कर दिया. इसके तक आप हमें ले और जो कुछ हमने भारत में पढ़ा है, वेदों में पढ़ा है, वो सब हमने उसका एहसास भी आपने कर. तो आज की तारीख में हमारे पास जो ऑप्शन है कि ये सच्चाइयां आपने समेटी है. यमुना की लंबाई का केवल 2% दिल्ली से गुजर रहा है. 70% प्रदूषण हम लोग कस्में करके इसकी मृत्यु कर रहे हैं. इसके ऑक्सीजन को हमने खत्म कर दिया. मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं बच्ची थी और मैं यमुना जी में गई थी तो इतने बड़े बड़े कछुए होते थे और पिछले 30 सालों से मैं जब भी मथुरा जाती हूँ मैं देखती हूँ मुझे वो एक भी कछुआ नजर नहीं आता. और हमने भारत सरकार में रह करके सारी नदियों का वाटर पॉलिसी का स्टडी किया तो सभी ने ऑक्सीजन कंटेंट आया तो हमने पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया है अपने क्योंकि हम लोग पैसे को में लगे हुए हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं और सारा प्रदूषण नदियों में डाल करके हमने अपने लिए नरक बहुत अच्छे से क्रिएट कर लिया. ये बेवकूफियां हम लोगों ने की हैं पिछले 50 सालों में और अब अति हो गई है और हम सबको अपनी दिशा और दशा बदलने के लिए एक तो पहली बात है हम सब मिलकर के इन सच्चाइयों को भारत सरकार और दिल्ली सरकार कोर्ट के माध्यम से FIR के माध्यम से उन पर दबाव डालें. यमुना को साफ करने के लिए वॉर फुटिंग पर कुछ न कुछ. हिंदी की भी वही स्थिति है. अभी 10 अगस्त को अमित शाह जी ने संसद में हम मिले, समिति की बैठक हुई थी. वो कह रहे थे हिंदुस्तान जो आजादी होगा 3 चीजों पर होता है, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज. विनोबा भावे वगैरह ने कितना संघर्ष किया, सरदार पटेल ने कितना संघर्ष किया, लेकिन हम लोग बड़े एक सपनों की दुनिया में जी रहे. हम पश्चिम की नकल करने में लगे रहे पिछले 50 साल. जो कुछ भी विदेशों से आए हम उसको सिखाते चले, आंखें बंद करके और उसी वजह से हमने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना समाज आवाज your voice is breaking, Mridula ji. Your voice is breaking constantly, you know. If you could speak, and if you could कुछ technical and if we could stick to Yamuna, it would be nice. It would be nice if we stick to Yamuna please today. Because we have to compile this program on Yamuna, so we want to stick to Yamuna please today. Definitely. तो यमुना से रिलेटेड आज की जो स्थितियां हैं, जो आंकड़े हैं, इन सब को लेकर के हमें भारत सरकार और दिल्ली सरकार
दोनों पर सबको साथ मिलकर के दबाव डालने की जरूरत है जी। ताकि जल्दी से जल्दी जो प्रदूषण है उसको हम रोक सकें और यमुना को रिवाइव कर सकें। ये क्या है? Aryan, please take over. Well, I don't have any questions for Ranjit, but I do have not only a suggestion, rather, I would like to push him to do that. Follow. Ranjit, You're going to do it with me, by the way. By the way, whatever you're suggesting, you will have to do with me. And I'm counting you in as a partner. Always with you. See, when we are talking about, we are actually talking about the biggest crime of the century. You talked about murder by humanity. We are actually talking about the biggest crime of the century. But we are forgetting one thing. This crime can make us extinct. Dar and discipline, they are very much interrelated. Right? जब तक डर नहीं है ना, discipline आती नहीं है. And what I believe in every level, from executives to the government and even to people, basic people who are constantly connected to Yamuna, जिनके लाइफ को माँ यमुना सींच रही है, उनमें डिसिप्लिन लाने के लिए थोड़ा सा डर पैदा करना भी बहुत जरूरी है. मुझे लगता है we should tell people what will actually happen if Yamuna become another Saraswati. What will happen if it dries up? What will happen if the source, our real water source, get toxic, that toxic that our children are going to die tomorrow, or even maybe in another 20 years or 25 years, Indraprastha may not exist, Mathura may not exist. जब हमें ये डर अगर हम लोग पैदा कर सकें लोगों के दिल में, तो I really do think that discipline, what is required to revive my Yamuna, we can achieve it. What I wanted to suggest, you have started an initiative which is unmatched. Work towards making it a movement. Until and unless this initiative, Project Atmanirbhar, especially for my Yamuna, becomes a movement, I really don't think, okay, this discipline can be created. I think we can, and I do understand, we have to do it together, because we all are the son of Ma Yamuna, and we have to save our mother. Otherwise, we won't exist, and probably we won't be there to even talk about a crime which we are committing without even knowing, or maybe at times by knowing also. And people who are doing it knowingly, they are to be punished, definitely be punished. And I think today I take an oath, I'll do everything in my capacity to save my Yamuna, and I'm with you, Ranjit. I want you to lead this oath with everybody who's present here. Let us take this oath. I want you to say it, and we will repeat it with our hands here. Aryan, go on. Okay, we can say it together. Yes. Everybody, hands on the chest, hands on the heart. जहां पर भी आपका दिल है, जिनका दिल नहीं है वो हाथ छोड़ दे. हम आपके लिए है माँ यमुना, और हम आपके साथ हैं, and we want to make sure you live again, and let us be the oxygenator, the supply, let us together give the real supply of oxygen what our mother requires today. She is in ICU. We want to see her at her true home. Jai Ho. Beautiful. Yeah. Jai Shri Yamuna. Thank you so much. Must say, beautiful. Anybody else would like? You have no questions, Aryan. So, is there anybody else who would like to ask any question? I think. Anurag, धर्मदास जी, हाँ, धर्मदास जी, आप कुछ सम्राट, आपने बहुत अच्छा presentation बनाया. I'm really very not only aesthetically pleasant, but of course knowledge wise it's a very good research, and many congratulations, and keep doing this work for RC, because RC needs all this support, because we need to take this project, this mission. Anurag, कुछ कहना है आपको? Anurag, anybody would like to say something? Anurag ji, अच्छा वीडियो पे भी आ जाओ. अनुराग कहे. Yes, वीडियो ऑन नहीं हो रहा. अच्छा. I think. कुछ बोलना है तो बोलो अनुराग. आर्यन, आपकी तरफ से वीडियो ऑफ है क्या? आ गया. बोलो अनुराग. वैसे तो कहना चाहूंगा कि बोलने के लिए आपने जितना प्रेजेंटेशन काफी अच्छे तरीके से दे दिया, शायद मैं ना दे पाऊं इतने अच्छे से,
बट ये है कि आने वाले टाइम पे अभी भी हम लोग जागरूक नहीं हुए, शायद हम यमुना नदी को खो देंगे। ऑलमोस्ट खो चुके हैं। सरस्वती नदी ऑलमोस्ट जा चुकी है। अपने मथुरा में सरस्वती नदी का, जहाँ नंद बाबा आए थे, वो एक नदी है काफी प्राचीन, वो खत्म हो चुकी है अभी। सरस्वती ऑलमोस्ट कुंड है नाले में अपने यहाँ तब्दील। पर। जी, सरस्वती महाविद्या मंदिर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने छठी पूजन किया था, तो वो नदी एकदम खत्म हो चुकी है। और देखा जाए तो दिल्ली से और मथुरा तक बेल्ट है जो यमुना जी की, उसकी स्थिति अभी क्या कह सकते हैं कि ब्रज का जो स्वरूप है उसकी वजह से वहाँ यमुना जी का भी हमको दर्शन हो जाता है। मथुरा गोकुल से आगे नहीं है, ऑलमोस्ट दिल्ली में भी नहीं है। जागरूकता जरूरी है सबको। कचरा डालते हैं। अभी नमामि गंगे से टेपिंग का काम चालू है, वो बोल रहे हैं कि 30 अक्टूबर से बंद हो जाएगा सब। लेट्स सी क्या होता है। Any suggestions you would like to give? आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? Otherwise we move to the next one. Next. Okay. I think हमारे पंडित जी भी जुड़े हुए हैं ना from Mumbai. हाँ, धर्मदास जी। धर्मदास जी, जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। थैंकफुली आपने आज कृष्ण भगवान का नाम ले लिया। जय श्री कृष्ण मेरा सभी दिन को। बना जय दिया। जमुना मैया की। और रंजीत भैया ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो तो उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि यमुना जी का वर्णन जो है, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने किया है, आज जरूरत है कि उन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की दृष्टि से और हमारे ब्रिज के जो अष्ट सखा हुए हैं, सूरदास जी, कुम्भन दास जी, परमानंद दास जी, छी स्वामी जी, इनके जो गाए हुए जो यमुना जी के 41 पद है, उनके द्वारा यदि हम एक जागृति अभियान चलाएं और समस्त देश में हम एक यमुना जी के तुम सेमिनार बोलो उसको, आप उसको सत्संग बोलो, और वो यदि करें, यमुना मंथन। हाँ, कुछ भी आप उसका नाम कुछ भी दें। और मैं आपको एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि यमुना जी के जो फॉलोअर हैं वो है पुष्टि मार्गीय वैष्णव जन। आज 5 करोड़ वैष्णव डेली नित्य प्रति यमुना अष्टक का पाठ करता है और यमुना जी के 41 पदों का पाठ करता है। यदि हम अपनी इस समस्या को लेकर के उनके बीच में जाएं और जो उनके धर्म गुरु हैं हम उनसे संपर्क करें तो विद इन ए ईयर वी कैन अटैच 5 करोड़ वैष्णव टू दिस आत्मनिर्भर ग्रुप। I wish Dwarkesh Lal ji could have joined us today and आपने, हाँ, sorry, continue, sorry. हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो आजकल जो भारत में 135 करोड़ की जनता बताते हैं, तो जो 135 करोड़ की जनता है उसको केवल इतना पता है कि यमुना जी एक नदी स्वरूप है। यमुना जी नदी स्वरूप तो है ही, लेकिन उसका एक स्त्री स्वरूप भी है, जैसे राधा का है, जैसे द्रौपदी का था, ऐसे उनका एक स्त्री स्वरूप भी है जिसको हम आदि दैविक स्वरूप कहते हैं, जिनके एक हाथ में कमल की माला है, एक हाथ में कमल की छड़ी है। उनका स्वरूप है दाएं दे कमल माल बाएं कमलन छड़ी, मुकुट जामा पटका भेष श्याम संग धायो है, बनमाल गुंजमाल सो है और नूपुर की झनक झनक झनकारो है। और इस स्वरूप से श्री यमुना जी राधिका जी को मनाने के लिए जा रही हैं। चौक उठी राधिका सेज हूती, अद्भुत रूप नैन को निहार है, मान कर दीनी कृष्ण सो मिलावे कृष्णा रूप ये तिहारो है। तो आज जरूरत है यमुना जी के प्रचार की, सभी को जागृत करने की। बस इसी के साथ मैं मेरी वाणी को मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहूंगी कि इंद्रप्रस्थ में भी एक जगह है आश्रम के नाम से। तो आश्रम पे बैठ के शंकराचार्य ने भी यमुना स्तुति करी थी और यमुना के ऊपर एक अष्टकम लिखा था। और आपने जो बहुत अच्छी बात कही यमुना जी की, जो आपने परिभाषा हमें बताई, तो मानो तो मैं यमुना माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी।
जी, हम उसको बहता पानी भी नहीं छोड़ पाए हैं, माँ तो दूर की बात है, तो हमें उसको पहले पानी लाना है यमुना का। अब रही और फिर इस यमुना जी के पानी की बात, ये यमुना जी का जो पानी है वो क्या है? तो जैसे वेदों में कहा गया है कि रसो यह परमाधारा सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मेत उपनिषद गीसत देव यमुना स्वयं। भगवान को हम कहते हैं निराकार है, भगवान का आकार नहीं है, और जब भी वो ही भगवान निराकार बनता है, जल स्वरूप बनता है, वही यमुना का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के अंग में से ये यमुना प्रकट हुई है, और ये यमुना गोलोक धाम से अवतरित हुई है, कोई साधारण नदी नहीं है। जो तो आज जरूरत है हमको इसके प्रचार की। हमको प्रचार के लिए अब क्या आप विचार करें? मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप इस पर विचार करें, और यमुना मंथन कहो, यमुना सेमिनार कहो, यमुना सत्संग, जो भी आप नाम देना चाहें, और मैं इसके लिए आप मेरी श्वास श्वास में जीवन पर्यंत मैं यमुना के लिए समर्पित हूँ। आप जहाँ चाहें मेरा उपयोग कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको कई बार फोन करके परेशान भी करती रहती हूँ। और मैं हम लोग बिल्कुल, देखिए ये हम लोगों का एक मिशन है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम को यमुना फोकस रखने की कोशिश करी है कि हम इसका प्रचार करें। या ये जो आज हमारी रिकॉर्डिंग होगी उसके साथ साथ हम लोग चंद्रकांत जी तो मुझे बहुत दिन से कह रहे हैं, मैडम आप PIL लाओ, PIL लाओ। अगर द्रौपदी नहीं लाएगी अपनी जगह की रक्षा के लिए तो कौन लाएगा? लेकिन हाँ, अब हमें इसको सीरियसली सोचना है, क्योंकि अब हमारा एक फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन चैनल बना है, जिसके द्वारा अब हम इसको आगे ले जा सकेंगे। और डेफिनेटली इसको आगे बहुत मल्टीपल लेवल्स पे इसका प्रचार होना है, स्कूल लेवल्स, कॉलेज लेवल्स के साथ साथ। आई थिंक हमें दरवाजे भी खटखटाने होंगे, जो इम्पोर्टेंट दरवाजे हैं, जैसे चंद्रकांत जी ने कहा। तो आप सब ने इतना अच्छा इनपुट दिया। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से? समर्थ, वुड यू लाइक टू से समथिंग? Anybody else would like to say? Pranam everyone. हाँ जी, Namaste. हाँ नमस्ते। I just want to add these things like we all know that Yamuna is polluted. We all know the cost for it. We all know everything what is behind it. So before everything gets extinct, even the wildlife is supported by Yamuna ji, and even land, everything, even our human life, everything is basically depending on 75% of our body is water. And if water. we are having this type of water, can you imagine what we are doing to ourselves? Yes. And we can see the climatic changes due to which we are now facing so much of diseases and everything, which will come up again and again and again. And if we want to get rid of them, the first basic step is that we must start acting on our nature. We must start protecting our climate, because climate can only keep us survive for a long time. If we are not going to support a climate, we are not going to support this river, we are not going to survive for any long time. So I would and really our earth will be another Mars. I would really suggest each of you can send us a mail with specific inputs on what action plan do you suggest. What are your action points for this at different levels, because the actions have to move. It can't be just one thing. Going for a PIL is one part, but an awareness when the PIL is there, there has to be a movement. And as Dharmendra Das ji has said, I think we should also put in this video to the people who are absolutely Yamuna Bhakts, like the Vallabhacharya sect, besides the government. So I think it's very good. Anybody else would like to say something? RC, आप कुछ बोलो। मैं कुछ कहना चाहूंगा आरसी। हाँ, yes, आर्यन बोलो। हाँ, मेरा एक सुझाव है, जो सुझाव I mean it's on a lighter side but very serious सुझाव। इस सुझाव को मानने से, ठीक है, 1 साल के अंदर यमुना अपने आप साफ हो जाएगी। दिल्ली के विधानसभा और पार्लियामेंट में जो भी लोग जाते हैं, जिनको पानी पीना होता है, यमुना के पानी पिए, कंपल्सरी। इफ यू कैन मेक इट। आर्यन, मैं आपको बताता हूँ, अच्छे सिर्फ पानी पिए, जिस कंडीशन में ये माँ यमुना है वही पानी पिए, नहीं अपने आप पूरी यमुना साफ हो जाएगी। यहाँ पर अनुराग, समर्थ, धर्मदास जी हैं। अभी रिसेंटली
मथुरा में किसी ने यमुना का जल भरा बॉटल में, एक व्यापारी था और शायद कोई अग्रवाल, और उसने बोला कि मैं श्रीकांत शर्मा जो हमारे यहाँ से पावर मिनिस्टर है 5 लाख रुपए दूंगा अगर वो इसको पी ले। उसने 1 लीटर पानी लिया और उसने बोला, फिर बाकी के लोग इनाम देने लगे, तो इनाम की राशि इतनी हो गई कि करोड़ों में चली गई। किसी ने बोला मैं 1 लाख दूंगा, मैंने लिखा मैं 10 लाख रुपए दूंगा अगर पियोगे तो। मेरी तरफ से एंड मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मैंने कम से कम 1 गिलास पानी, क्योंकि जब हम लोग अपनी यात्रा में दिल्ली पहुंचे थे तो वहां पर कुछ बाद में कुछ ऐसे लोग जाए गूंज टाइप के जो भक्ति की बात कर रहे थे कि अरे आपने हमारी जगह को ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे वो जो लैंड ग्रैबिंग टाइप के लोग होते हैं। सो आई क्वेश्चनड देम, देयर वाज दिस लेडी, आई सेड अगर आप यमुना की इतनी बड़ी भक्त हो, चलो आओ, ये छठ घाट है, आप इसमें से पानी पी करके दिखाओ। उसने बोला तुम पी सकते हो? मैंने बोला हाँ पी सकता हूँ। तो उसने बोला पीजिए। तो मैंने एक बॉटल भरी छठ घाट पे। मैं उसको वापस भी नहीं जाना चाहता कि मेरे को क्या फीलिंग हुआ उस समय पर, बट मैंने वो बॉटल भरी और मैंने उसको पिया उसके सामने। और मेरे साथ में एक मुकेश चतुर्वेदी भी है मथुरा के, जो मेरी यात्रा में थे, उन्होंने भी पिया। फिर हमने उस लेडी से पूछा अब आप पी के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आप भक्त हो। एंड आई सल्यूट दैट लेडी। उस लेडी ने भी एक बॉटल भर करके पिया, एंड शी वाज फ्रॉम पानीपत। और वो शो करता है कि कितना कोई व्यक्ति एक काज के लिए डेडिकेटेड हो सकता है। मैंने पिया, मैं आज भी मैं चैलेंज करता हूं, अगर जो यमुना का भक्त है वो हमारे घाटों से, हमारे विश्राम घाट से पानी का बॉटल भरे, और मैं सबको बुलाता हूं, प्रधानमंत्री को बुलाता हूं, राष्ट्रपति को बुलाता हूं, जितने भी लोग हैं इस देश में, साधु संत बड़े बड़े जो हैं, मैं उन सबको बुलाता हूं जो क्लेम करते हैं कि हम ये करते हैं। मैं कहता हूं चलो आओ आकर के यमुना का पानी पियो मेरे साथ। मैं 1 बॉटल पीऊंगा, आप लोग 100 ml पियोगे, आपसे 10 गुना मैं पीऊंगा, बट आप पी करके तो दिखाओ। नहीं मिलेंगे आपको लोग। जहां तक आपने उसकी बात कही कि बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, समर्थ ने भी कही, सबने कही, कि अनुराग ने भी कही कि हमारा विनाश हो जाएगा अगर यमुना चली गई तो। देखिए यमुना तो कहीं नहीं जाने वाली, ये मैं बताता हूं, मेरी जो फीलिंग है। हम जरूर चले जाएंगे, यमुना नहीं जाएगी। अगर आप आदि शंकराचार्य का आप यमुनाष्टक अगर सुनेंगे तो उसमें कोविद करके शब्द है, एक कोविड। ऐसे ही जब आप हनुमान चालीसा सुनते हैं तो उसमें भी कोविद शब्द आ जाता है। तो हनुमान चालीसा में भी आता है और आदि शंकराचार्य की यमुनाष्टक में भी आता है। सो इट टुक लिटरली अ कोविड फॉर यमुना टू बिकम क्लीन। कोविड क्या था? एक एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा चीज। अगर आप पूरी दुनिया में जितना कोविड हुआ है, अगर आप उसको एक मेजर करोगे वेइंग स्केल पर, तो वो 2 ग्राम से ज्यादा नहीं है, 2 ग्राम्स जो पूरी दुनिया में जो फैला है। So this 2 grams of a virus has created millions of deaths. आपने हेल्थ की बात की, जब हमने अपनी यात्रा की हथिनी कुंड के बाद से आज भी लोगों के मुझे फोन आते हैं कि भैया मुझे कैंसर है, हमारे गांव में कैंसर है। आप नोएडा से निकल करके जब जाते हैं तो वहां पर एक कैंसर विलेज ऑफ एशिया है, जहां पर हर घर में कैंसर पेशेंट है, हर घर में। लोगों को ये नहीं पता। और जो मथुरा में आज हमको पानी आ रहा है वो अपर गंगा कनाल से गंगा का पानी आकर के थोड़ा सा बहाव क्रिएट कर दिया जाता है, लेकिन यमुना का 1% जल नहीं है। जब बारिश होती है तो बारिश के माध्यम से पानी आ जाता है, हम आगे उसको छोड़ते हैं। यमुना को जिंदा रखने वाली अगर दिल्ली के बाद अगर कोई नदी है तो वो चंबल है। तो चंबल और सिंध जब वो आकर के मिलती हैं, और भद्रा जब वो आकर के मिलती हैं यमुना में, तब जाकर के यमुना को थोड़ा सा रिप्लेनिशमेंट मिलता है, तब जाकर के वो प्रयाग पहुंचती है। अगर हम गर्ग संहिता को पढ़ेंगे जिसमें यमुना और गंगा का संवाद है, तो उसमें हमको ये पता चल जाएगा कि गंगा क्या रूपी है, क्या महिमा है, और जो गंगा यमुना के बारे में कहती है हमें वो भी पता चल जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर अस टू डू दैट। Chandrakant ji Ganga is a man-made river. Ganga was a specially man-made river
Yamuna is a natural river which is a part of the sort of man-made नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि Ganga is a man-made इंसान river. का आवाहन किया गया था. नहीं, Ganga is a man-made river, which I will tell you later. This is not the time to discuss Ganga. Yeah, but I wouldn't call it a man-made river. It is a man-made river. We have scientific proofs for it. Okay, I think that can be that's a different issue. That's a different issue. Yeah. And I feel that's a very interesting topic also. But however, that is related to Sagar and how Sagar and the 5th generation Bhagirath, how they planned it. That's a different issue altogether. Let's not confuse the two, because today we have to save Yamuna, because we have to save our civilization from getting this area, the Braj and the Indraprasth and the Indrabhumi and the Brahma Kshetra secure. No, we can only do our prayas. And my Yami doesn't care कि उसका क्या होगा. हम तुच्छ मनुष्य हैं यहाँ पर जितने भी हैं. हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं अपने इष्ट के लिए. हम अपने इष्ट को नहीं बचा सकते. हमारा 60-70 साल का हमारा एक जो इतिहास है वो बहुत जल्दी इतिहास हो जाएगा और लोग ये भी नहीं जानेंगे कि कौन आया था, क्या कह करके गया था. लेकिन जब तक हम जीवित हैं हम ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन से देवता के लिए, कौन से इष्ट अपने के लिए क्या काम कर सकते हैं. अगर आप किसी को मानते हो, अगर आप किसी में विश्वास रखते हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो. सवाल बस इतना ही है. और क्या कर सकते हो वो तभी होता है, जो धर्मदास जी कहते हैं, वो तभी आप कर सकते हो जब आपके ऊपर उनकी कृपा होगी. नहीं तो सैकड़ों करोड़ों हजारों लोग हैं जो बहुत क्षमता भी रखते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते. करने का कारण ही यही है कि हम सिर्फ करता है, कारक कोई और है. तो यहाँ पर जितने भी लोग असेंबल हुए हैं, ये एक कृपा है उन सभी पर, या तो अपने अपने इष्ट की या फिर स्वयं देवी यमुना की. And we will try our best, like Chandrakant ji has suggested, we will take some actions जो आध्यात्मिक से थोड़ा सा हट करके भी होते हैं, तो वो भी लेना जरूरी होता है. Let us all go back and try कि जैसा आर्यन ने भी सजेस्ट किया, धर्मदास जी ने सजेस्ट किया कि we have to spread the word, we have to hold the people accountable, we will have to make sure that Yamuna finds its place. We are not the ones who can stop the nalas. वो हमारे हाथ में नहीं है. हम नाले बंद नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते. बट हम सभी को एक तरीके से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा यमुना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए. Even if there is no Yamuna in Namami Gange, I think with small efforts, अगर हम पूछते हैं किसी को, देवी को या देवता को, वो स्वयं जीवित हो जाते हैं. और अगर उनको पूजा नहीं जाता तो वो मरण की अवस्था में चले जाते हैं. हमारे मथुरा में उनको पूजा जाता है, लेकिन उनका रूप ही नहीं है मथुरा में, तो पूजने का फायदा क्या. आपने जो वैष्णवों की बात की धर्मदास जी ने, जो 5 करोड़ वैष्णव है संप्रदाय, ये वही वैष्णव है जिनके पास सबसे ज्यादा पूरे देश की संपत्ति है. सबसे ज्यादा, मैं कहूंगा 60% of the country's wealth lies with these 5 crore Vaishnavas. And today they are the same Vaishnavas who are controlling the power of this country politically. Manjula ji works for the Ministry of Home Affairs. The very Home Minister is a great Yamuna Bhakt, and his wife keeps going to Mathura. उनके तो हमारे चतुर्वेदी समाज में उनके एक पंडे भी हैं जो अपने कार्ड पे लिखते हैं होम मिनिस्टर का पंडा. सो सिर्फ मात्र कार्ड पे लिखवाने से कुछ नहीं होता. आप उनको जब उनके इष्ट के दर्शन कराते हो तो इष्ट की क्या हालत है वो भी जरा बताइए. तो I think the key takeaway from this entire meet is that a person like me shouldn't leave my business and my world and do a Kalash Yatra Nange Pair 620 kilometers every year. मेरे साल के एक महीने ऐसे कम होते जाएंगे और मैं पैदल चलूंगा और यमुना वैसी की वैसी रहेगी. तो ये एक कलश यात्रा तो सिर्फ एक जागरूकता का अभियान था, जमीनी हकीकत जानने के लिए. अगर यहाँ से कोई कर सकता है तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जिस तरह से कांवड़ होते हैं गंगा जी के, उसी तरह से
यमुना जी का एक कांवड़ यात्रा होनी चाहिए जो दिल्ली के थ्रू निकल के जानी चाहिए। तो जब इतने हजारों सैकड़ों वैष्णव निकलेंगे, देखो वो शैवाइट्स आते हैं जो वहां से जाते हैं गंगा जल लेकर के हरिद्वार से। और हरिद्वार क्या है? हरि का द्वार है। हरि कौन है? हरि विष्णु है। वहां से उसी द्वार से आप उत्तरकाशी की तरफ जाते हो, तो उत्तरकाशी आपको केवल केदारनाथ नहीं लेकर के जाता, वो आपको गंगोत्री भी लेकर जाता है, यमुनोत्री भी लेकर जाता है, बद्रीनाथ भी लेकर जाता है। और गंगा और यमुना में मात्र कुछ किलोमीटर का अंतर है जब वो बहती हैं ऊपर से, जिस तरह से सरस्वती का भी था। तो कुछ गंगनानी करके एक कुछ स्थान भी हैं उत्तरकाशी जिले में जहां पे गंगा स्वयं आती है यमुना के किनारे, और आज भी वो जगह है, आप जाकर के अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यमुना कम्स टू गंगा। और जब पानी भरता है वहां पर, अगर वहां पर फ्लड होता है, तो अगर मडी वाटर है, क्लियर वाटर है, किस तरह का पानी है, आप गंगोत्री या गंगा में जाकर के वो पानी देख सकते हैं। और यमुना के पास गंगनानी में आकर के उसी पानी को उठा करके अगर आप कंपेयर करोगे तो सेम होगा। अगर वहां पर मडी होगा तो यहाँ पर भी मडी हो जाएगा, एंड यमुना का अलग होगा। लाखा मंडल के पास में एक जगह है जहां पर आज भी गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती है, जो पांडवों ने वहां पर शिव जी की एक लिंग का स्थापना की थी। सो बहुत कुछ है, और क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो एक दूसरा सवाल है। लेकिन जो फेयर फैक्टर है, जो आर्यन ने कहा, वो फेयर फैक्टर तो वैसे भी लोगों को होना चाहिए और जगना चाहिए, क्योंकि बिकॉज द डेटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो स्वयं मनु, यमा, यीमा की जुड़वा बहन है, जहां से हमारी सबकी उत्पत्ति हुई है। तो वो एक तरीके से हमारी बुआ है। तो सिर्फ कृष्ण की अष्टभार्याओं में से एक नहीं, उसकी चतुर्पट रानी, सिर्फ सूर्य की पुत्री नहीं, वी आर आंसरेबल। क्योंकि जब हम यहां से जाएंगे दूसरे लोक में, तो कहते हैं यम यातना। धर्मदास जी, वो क्या होता है न जा तू यम यातना? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पर है, आप म्यूट पर है धर्मदास जी। आप वो लाइन सुनाइए। अब आई? हाँ, वो लाइन सुनाइए यमुनाष्टक में से, यम यातना के ऊपर। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र मध्यद्भुतम, न जातु यम यातना भवते ते पय पानतः, यमोपि भगनी सुतान कतमुहंत दुष्टान अपि, और प्रियो भवत सेवनात् तब हरेर यथा गोपिका। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने इस यमुनाष्टक के 6वें श्लोक में कहा है कि हे श्री यमुना जी, हम तो आपको नमन भी नहीं कर सकते हैं, आपकी कृपा हो तो ही जीव आपको नमन कर सकता है, क्योंकि आपका जो चरित्र है वो अति अद्भुत चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण को हम कहते हैं अद्भुत चरित्र कर्मा, लेकिन यमुना जी का चरित्र भगवान श्री कृष्ण से भी अति अद्भुत चरित्र है। क्यों है उसको आप सुनिए। वो यो है कि भगवान का जो महात्म्यम है वो तो शास्त्रों में विदित है, और जिसको महात्म्यम पता है तो वो उसको नमस्कार भी करेगा। यमुना जी का महात्म्यम शास्त्रों में विदित नहीं है, बहुत ही कम उपलब्ध होता है। तो इसलिए जीव यमुना जी को नमन भी नहीं कर सकता है, और उसका मूल कारण यही है कि जब तक हम महात्म ज्ञान को नहीं जानेंगे तब तक हमारा प्रेम, हमारी भक्ति उस जीव में नहीं जुड़ सकती है। जैसे जब हम किसी का बायोडाटा देखते हैं तो हमको लगता है नहीं ये आदमी अच्छा है, तो जब तक हम यमुना जी के संपूर्ण महात्म्य को नहीं जानेंगे तब तक हमारा प्रेम यमुना में नहीं जुड़ सकता है। और महात्म्यम तो ऐसा है कि एक पैपान करने के मात्र से ही जो है यम की यातनाओं से जीव को मुक्ति मिल जाती है, और इस जीव को ये शरीर जो है वो एक दिन छोड़ना है और सबको यमपुरी में जाना है। सबको यमपुरी में जाना है। भैया एक ऐसी जो है पद्म पुराण में कथा आती है, उसका मैं आपको लिख करके आपको सेंड करूंगा। जरूर। एक बहुत बड़ा पापी था, और वो जब वो स्वर्ग में गए, दो भाई थे, मरे एक साथ में, और जब मरे दोनों स्वर्ग में गए, दोनों पापी थे,
तो धर्मराज बोला कि एक को स्वर्ग में डाल दो और एक को नरक में डाल दो। तो जो स्वर्ग में गया वो ज्यादा पापी था। तो उसने यमदूत से पूछा तो भाई मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे ये स्वर्ग का सुख क्यों मिल रहा है? तो तुमने माघ मास में एक बार संतों के साथ में यमुना में स्नान किया था, उसका ये फल आपको प्राप्त हुआ है, और ये पद्म पुराण में कथा आती है। जी, सो इसका मतलब ये था कि ये सब कहने का, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इनने कहा है कि गंगा का स्नान, यमुना का पान करो, तुम यम यातना से बच सकते हो। उससे भी जरूरी क्या है कि श्री वल्लभाचार्य भी स्वयं ये कहते हैं कि मैं आपको नमन नहीं कर सकता, मेरी औकात क्या है। क्यों? क्योंकि आप उसी को नमन कर सकते हो जिसको आप देख सकते हो, पहचान सकते हो। जब अर्जुन को श्री कृष्ण समझ में नहीं आए, उन्होंने उसको दिव्य दृष्टि दी कि चल तू देख मुझे, तू समझ में क्या हूं, तेरे सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। नहीं तो मैं एक्सप्लेन करते करते थक जाऊंगा, बिकॉज यू आर ह्यूमन, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारे सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। सवाल खत्म नहीं होंगे, तुम पूछते जाओगे, तर्क पे को तर्क तुम करते जाओगे। चल ये देख, जो तेरे को समझ में ही नहीं आएगा। तो जब वो ऐसे कहते हैं कि मेस्मराइज हो गया कि है क्या, जैसे रावण के साथ में हुआ था जब उसने शिव जी के पहली बार दर्शन किए थे और शिव जी ने कहा था कि बता तुझे क्या चाहिए। कहता है मैं तो सिर्फ देखता ही रहूंगा, मैं कुछ मांग ही नहीं सकता, मुंह ही नहीं खुलेगा मेरा। उसी प्रकार से यमुना जी as per this is beyond explanation. You can explain Krishna, you can explain Shiva, everything can be explained. She is beyond that. So जब वो कृपा वो देती है तब आप उसको समझने का प्रयास करते हो। yes. और जब आप उसको समझने का प्रयास करते हो तब आपको उसके बारे में और जानने को मिलता है। जैसे कहते हैं काल और फिर कहते हैं महाकाल, जैसे कहते हैं शक्ति और फिर कहते हैं पराशक्ति। तो काल में सब समा जाता है तो फिर महाकाल क्या है? शक्ति में सब आ जाती है तो फिर ये पराशक्ति क्या है? जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्मा है वो पराशक्ति, वो क्या है? और कालों का भी जो काल है वो महाकाल, वो क्या है? उसी प्रकार से जब आप यमुना को स्टडी करने के लिए जाएंगे तब ये समझ में आएगा कि भाई हम कहां से आए और हम कौन है, क्यों है, और ये मैडम कौन है, ये क्या है, ये क्या चीज है जिनके बारे में तो स्वयं कोई भी नहीं बोलता। इन्होंने जो छंद गाया था उसका, यमुनाष्टक का, उसमें क्या कहा था कि वो कृष्ण रूपा स्वयं, आपने वो जो बोला था, जो उसकी जो लास्ट लाइन थी कि कृष्ण सो मिलावे कृष्णा रूप ये तिहारो है, कि जब वो कृष्ण से मिलाती है गोपियों को, राधा से, सबको। जब शिवजी भी जाते हैं, कहते हैं कि यार एक दिन मैं भी रासलीला देख लूं, तो वो जब जाते हैं तो शिव को एंट्री नहीं मिलती। तो स्वयं हरि कहते हैं कि आप जाइए, आप यमुना जी से परमिशन लेकर के आइए कि मेरे यहाँ पर एंट्री वो ही देती हैं। तो वो गए यमुना जी के पास में, इसका पूरा बाकायदा इसकी स्टोरी है। यमुना जी बोलते हैं कि आपको औरत बन के जाना पड़ेगा तब आप अलाउड हो। तो भैया मैं यही चाहता हूँ कि पिछले 21 साल से मैं यमुना का प्रचार करता हूँ वैष्णव संप्रदाय में। मेरा जो ऑडियंस है वो है वैष्णव संप्रदाय बल्लभकुल, और वहीं आपको ज्यादा फॉलोअर यमुना जी के मिलेंगे। और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं वो भी तो वैष्णव ही है जो, और वो जो है जब बड़ौदा द्वारकेश लाल जी के पास आते हैं तो वो ऐसे सिर झुकाते हैं। तो मेरा एक यहाँ पर एक विनम्र सजेशन है कि जितने भी गोस्वामी बालक इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, द्वारकेश लाल जी की अध्यक्षता में हम सभी बल्लभकुल के बालकों को बुलाएं और इस पर एक चर्चा करें। एक एक गोसाई बालक हजार जो है अपने शिष्यों को मथुरा लेकर के आ सकता है। एक विशाल आयोजन करें और यमुना जी की ताकत को हम देश को बताएं और सरकार को बताएं। करोड़ों लोग आ सकते हैं मथुरा, यदि अरेंजमेंट हो जाए तो। पहले यमुना जी से परमिशन लेते हैं वो क्या चाहती है। जी। लेकिन पंडित जी बात तो ये है कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन इंद्रप्रस्थ में है, तो अगर आए तो पहले इंद्रप्रस्थ को साफ करें तो फिर आस्ते आस्ते आप नहीं, दिल्ली में ही होना चाहिए। मेरा मानना है दिल्ली में ही होना चाहिए। दिल्ली में होगा तभी उसका एक कहते हैं दिल्ली में ही हो। पूरे देश में आपसे पड़ेगा। मैं आपका ध्यान एक बात पर और। म्यूट हो गए आप।
अरे आप म्यूट हो गए। हेलो, आ रही आवाज? हाँ बोलो। जब 2015 में यमुना आंदोलन हुआ था और हमारे ब्रिज के संत श्री रमेश बाबा और लोगों ने जो है ये आंदोलन किया था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था ये आंदोलन मत करो, दिल्ली के रामलीला मैदान में ये सारा पैसा खर्च करो और जितने भी गोस्वामी बालक हैं सबको वहां पर बुलाओ और एक एक वैष्णव अपने शिष्यों को 500, 250, 1000 शिष्यों को, पूरी वैष्णव समाज को दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाओ, वहां यमुना मंथन करो और उसका लाइव टेलीकास्ट करो। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी जो है, तो मैं चाहता हूँ दिल्ली वो में इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो हमारे माध्यम से होना था ना उस समय पर। आपकी मान लेते तो अभी आप ये सुझाव नहीं दे रहे होते। उनकी यात्रा आ रही थी दिल्ली, उसको रोक दिया गया था बॉर्डर पे, आना नहीं दिया था उनको अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही अफसोस। नहीं अभी और हम मेरे पास राइटिंग में भी है, मैंने इनको राइटिंग में प्रपोजल दिया रमेश बाबा को और पंकज गोस्वामी को, उनके साइन की कॉपी भी भैया मेरे पास में है। कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, बात गई, अब आगे की सोच। अभी क्रिसोल्स मीडिया प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर और द्रौपदी दीम ट्रस्ट सब मिलकर के और इस ग्रुप पे जितने भी लोग हैं हम सब मिलकर के अपना अपना काज करेंगे, कोशिश करेंगे। बोल जमुना मैया की जय। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत धन्यवाद, thank you very much. It was a very enriching session and it has given a lot of ideas and inputs for taking forward a mission on Yamuna's rejuvenation and also proper respect to her sacredness as well as her riverfronts, not only in Delhi but across the length and breadth of her journey, that is from Yamunotri to actually I would say Sangam, you know. So let us work towards a common mission with a focused attention so that we are able to succeed in our small mission. And as you said, that we can only do when Yamuna blesses us. And I think the fact that we are talking about Ma Yamuna today is because Yamuna has blessed us. True. Otherwise, we wouldn't be discussing Yamuna today. True. So thank you so very much for this enriching session and a lot of inputs from everybody. Thank you. Let's pray to Ma Yamuna that she keeps blessing our efforts so that we are able to achieve our objectives. Thank you very much. Jai Shri Yamuna. हर युग का ये भारत दर्शन, हर युग का ये भारत दर्शन, हर युग का ये भारत दर्शन। Welcome to Indraprasth, the capital of the world's oldest, largest, and the most vibrant democracy, where eminent scholars and experts talk on the various aspects that have made this country a Mahan Bharat. Indraprasth Talks, an initiative of the Draupadi Dream Trust, Project Atmanirbhar of Ranjit Chaturvedi, Team Crisols Media, led by Aryan Aditya.